First question. Log of 2 to the base 10 is a. Log of 3 to the base 10 is b. Express each of the following in terms of a and b. So first let me try log of 12. ध्यान से देखना. Log of 12. Om, can you tell me what is the base in this question? 10. Very good. जब भी base नहीं दिया है तो base हम लोग क्या ले लेते हैं 10. Okay. Om, can I write log of 12 as log of 3 into log of 4? Yes. Can I write? Prajakta, can you tell me a way how to convert this multiplication into addition? Log of 3 plus log of 4. Very good. Log of 3 plus log of 4. So this is the rule, the laws of logarithm which we have applied. Okay. Okay. Log of 3 I will leave as it is. Can I write log of 4 as log of 2 square? Achha, can I write it as log of 3 plus 2 log of 2? Yes. Right? Achha, now log of 2 to the base 10 is a and log of 3 to the base 10 is b. So can I write it as b plus 2a? Yes. Okay, answer. So I have expressed log 12 as b plus 2a by solving it. कैसा था? अच्छा था ना क्वेश्चन? लिख लो प्लीज इसको और तुम्हें सॉल्व करना है थर्ड वाला. And I'm going to give only limited time for solving. 2 log 2 is 2a. Yeah, log 2 is just a. So 2 log 2 is 2a. And log 3 is b. Note this down and solve the third one. आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है. ऐसे बहुत क्वेश्चंस है आगे. They can be little tricky.
Log of 9 by 4, log of 9 minus log of 4, log of 3 square minus log of 4, 2 log 3 minus 2 log 2, 2b minus 2a, 2b minus 2a, orally. Okay. Okay, good, very nice. Let's move ahead. No, I will give you homework in the end. Just mark in your textbook which we are doing. ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं वो मार्क कर लो, होमवर्क मैं एंड में देता हूँ. ओके, log 2 की वैल्यू दी है, मैंने तुम्हें कैलकुलेटर में बताई थी लास्ट टाइम, बताया 0.3010, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू. log 3 0.4771. फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनमें सबकी वैल्यू पूछिए वो लोग. सो लेट्स फाइंड, लेट अस फर्स्ट फाइंड दिस फोर्थ वन, log 15. मुझे log 2 पता है, log 3 पता है, log 15 पूछा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. द इजीएस्ट वे इज टू राइट इट एज log of 3 into 5, which is log of 3 plus log of 5, correct? Can I write it as log of 3 plus log of 10 by 2? सही है ना, 5 तो 10 by 2 ही होता है. Now see what I'm writing, log of 3 plus bracket में log 10 minus log 2. Can I write it like this? Log of 10 by 2 is log 10 minus log 2. अच्छा, log 3 कितना है? 0.4771 प्लस ब्रैकेट में log 10 कितना है? 1. क्योंकि log 10 टू द बेस 10 1 ही होगा ना, बेस नहीं है. एंड log 2 आई नो माइनस 0.3010. सो पहले इन दोनों को माइनस करो, जो भी आंसर आएगा 0.4771 में ऐड कर दो एंड गेट द आंसर. देख के लगता है कि नहीं होगा सॉल्व, बट देन व्हेन यू सिंप्लीफाई it happens. Come on, get the answer. Okay, what you are getting answer as? Sir, I am getting as 1.176. No sir, 1.1761.
Okay, so this is from exercise 8B, question number 12, sub question 4. Can you check it in the textbook? Okay, Prajakta is getting 1.1752. Check. 8B 12th ka 4th. What you are getting on? 1.1761. So this is the correct answer. What did you get? 1.1761 is the correct answer. You are marking ना, जो भी हम कर रहे हैं वो मार्क कर देना. Okay, so this is how you have to solve these kind of questions. Remember that. You can do the calculations later. See this one. This is very nice question. X is equal to 100 raised to A, Y is equal to 10,000 raised to B, and Z is equal to 10 raised to C. Find the value of log of 10 root y upon z square by, x square by z cube in terms of A, B and C. ये x, y और z की वैल्यू है. ये हमें बाद में काम आएगी. ठीक है, उससे पहले हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है ए बी सी के टर्म्स में. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना. ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस. log of 10 root y upon x square z cube. ठीक है, so we will write it as log of 10 root y, 10 root y minus log of x square by z cube. Do you agree with this? डिविजन था ना, तो मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया. अच्छा, अभी इसको भी आगे सिंप्लीफाई करूंगा मैं. ये बन जाएगा log of 10 प्लस log of root y. क्यों? क्योंकि log of 10 root y is log of 10 times root y. 10 into root y log of 10 plus log of root y बन जाएगा, माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा log of x square प्लस log of z cube. Agree with this step? Okay. ठीक है, log of 10 to the base 10 कितना होता है? ये हो जाएगा प्लस log of y raised to 1 by 2. Do you agree with this? Root y is y raised to 1 by 2 माइनस, अच्छा ब्रैकेट ओपन कर दूंगा मैं. ये देखो क्या लिख रहा हूं मैं, log of x square है. कैन आई राइट इट एज 2 log x? अच्छा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट खोलूंगा, सारी साइन चेंज होगी, आगे भी माइनस हो जाएगा, एंड आई विल राइट इट एज 3 टाइम्स log of z. सही है ना? किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट है इसमें? कुछ भी नहीं. अच्छा, 1 प्लस ये हाफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ log y माइनस 2 log x माइनस 3 log z. अब मैंने वो जो कॉम्प्लेक्स मेरा इक्वेशन था ना, उसको सिंप्लीफाई तो कर दिया. मतलब एक्स वाई जेड में तो मैं लेके आ गया उसको, कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई कर दिया. देखो, है ना? लेकिन मुझे एक्स वाई जेड के टर्म्स में नहीं, ए बी सी के टर्म्स में चाहिए. तो तुम्हें दिख रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू है.
क्वेश्चन में दी है, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन में दी है 15th क्वेश्चन में. Do you have the values? Can you give me the values when I ask? So 1 plus half into log of y की वैल्यू क्या है? 10,000 raised to 10,000 raised to b. Okay, nice. Minus 2 log x की वैल्यू क्या है? 100 raised to a. Okay, minus 3 into log of z की वैल्यू क्या है? कूल. ओके, अब एक्स वाई जेड चला गया, तुमने देखा सडनली एक्स वाई जेड इज गॉन. नाउ वी हैव ए बी सी. So now we can simplify this further and it is possible. No, no, no. I don't have to find ABC. I have to express this in terms of ABC. मुझे ABC नहीं ढूंढना है. क्वेश्चन को समझो. Do I have to find ABC? No, I have to express or I have to find log of 10 root y upon x square z cube in terms of ABC. So XYZ तो चला गया, ABC आ गया, बट मैं अब क्या करूंगा? Do you think that I can use power rule here, here and here? ये जो पावर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के आगे तीनों में. ठीक है. ओके, यहां तक लिखा ना सबने या कुछ बाकी है? यहां तक लिखा है ना सबने? ओके, ध्यान से देखो अभी. Look carefully please. This is very interesting and important. So 1 का तो 1 ही रहेगा. ये b आगे 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1/2 टाइम्स b इज b by 2. b/2 into log of 10,000 है. Can I write 10,000 as 10 raised to 4? Yeah, 10,000 is 10 raised to 4. Minus a आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a टाइम्स log of 10 raised to 2. 100 is 10 square. अच्छा, माइनस 3c, c आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ 10. अच्छा, और एक स्टेप आएगा यहाँ पे, और एक स्टेप आएगा, ध्यान से देखो. 1 प्लस ये जो 4 है ना, 4 अभी भी पावर है, क्या मैं उसको आगे ले सकता हूँ? तो ये क्या हो जाएगा पता है? 4b/2 टाइम्स लॉग ऑफ 10 माइनस ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a टाइम्स लॉग ऑफ 10 माइनस 3c टाइम्स लॉग ऑफ 10. अच्छा, ये 2 2 ज़ा 4, ये कटेगा. 1 प्लस 2b. अच्छा, log 10 कितना होता है? उसको तो सीधा हटा देंगे, log 10 लिखेंगे ही नहीं. माइनस 4a, फिर से log 10 को 1 बना देंगे, माइनस 3c. दिस इज द फाइनल आंसर. आई हैव एक्सप्रेस्ड, आई हैव कंप्लीटली इरेडिकेटेड log and xyz, and my answer I have expressed in terms of a, b and c. Can you please check this answer? This is question number 15. Correct है ना? But I hope you understood this. हमको log भी नहीं चाहिए. We don't even want log, so वो भी हटा दिया पूरा. Okay, shall we go to the next question? Okay, this is the next part. Oops. Okay, if log 8 to the base 10 is 0.90, find the value of log 4 to the base 10.
This is question number 1 of exercise 8C. Just check if you have the same question in your book. Do you have the same question? 8C question number 1. मार्क कर लेना उसको. क्या बोल रहे हैं लोग देखो. Let's find the meaning of this, what they are trying to say. Log of 8 to the base 10 is 0.90. Can I write it as log of 2 cube to the base 10 as 0.90? And can I write it as 3 log 2 to the base 10 is 0.90? Can I write it as log of 2 to the base 10 is equal to 0.90 divided by 3? Yes, क्योंकि ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा. So can I cut them and write 0.30? Yes, I can. So basically log 2 to the base 10 is 0.30. This is not the solution to any of the part, but this is what I will require later in the chapter, in the question. ठीक है. अब मुझे इसको यूज करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, और मैं इसको यूज करूंगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए. आई एम डूइंग द थर्ड वन, log of 0.125. Can I write log of 0.125 as log of 125 upon 1000? Can I? Can I write it as log of 125 minus log of 1000? Can I write this as log of 125 है ना ये 5 cube, log of 5 cube minus log of 1000 I will write it as log of 10 cube. Can I? अच्छा, can I write this as 3 log 5 minus 3 log 10? सही है. Okay, 3 log 5 minus 3 log 10. See, I am writing 3 log 5 as 3 times log of 10 by 2. 5 को मैंने 10 by 2 लिखा, ये बहुत काम आता है. Minus 3 log 10. Can you tell me what is log 10? 1. तो 3 into 1 is 3. log 10 तो कट ही जाता है. अच्छा, can I write this as 3 times log of 10 by 2 है तो log of 10 minus log of 2. सही है. 10 by 2 10 minus 2. अच्छा, minus 3. अच्छा, सो ये, अच्छा ये क्या हो जाएगा, log of 10 क्या बन जाएगा, माइनस log of 2. मुझे पता है ना log of 2, ये देखो एग्जैक्टली log of 2 की वैल्यू अब मुझे काम आई. कितनी आई? 0.30. और ये आ जाएगा -3 यहाँ. बस इसको आगे सॉल्व कर लेना. सो ये बन जाएगा 3 ब्रैकेट 1 minus 0.30 minus 3. 3 minus 3 into 0.70 2.10 minus 3 कितना हो जाएगा, minus 0.90. Is it correct? Is it correct? Check करो आंसर. This was question number, which question? 8C फर्स्ट का थर्ड. 8C फर्स्ट का थर्ड. सही है ना? It has to be. इतनी मेहनत की है. But did you understand? कैसे किया हमने? थोड़ा लंबा था ये, लेकिन this is how you work your way around with logs.
Good. Will you be able to try this one? This is 8c ka third one. If log of a to the base 10 is b, find 10 raised to 3b minus 2 in terms of a. I don't know whether you'll be able to do it. Try करो. जब तक try नहीं करोगे तुम्हारा you will not get that strength, that courage to. Are you guys stuck? Okay. Okay, look, if you are stuck, then I can help you maybe. शुरुआत तुम्हें करनी चाहिए यहीं से, क्योंकि यही एक इक्वेशन है जो ए और बी को कनेक्ट करता है. So I would take you back to the old ways. Do you remember when I taught you exponential language, logarithmic language, how to translate? So remember that, and you can easily translate this equation into an exponential one. It becomes 10 raised to b is equal to a.
है कि नहीं? अगर ये मिल गया तुम्हें तो अब इससे काम करना क्या प्रॉब्लम है? 10⁻³ माइनस 2, कैन यू राइट दिस एज 10⁻³ अपॉन 10⁻²? Can you write this as 10 raised to b the whole raised to 3 the whole raised to 10 raised to 2 the whole upon 10 raised to 2? क्या किया मैंने? ये 3b को b और 3 में अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई होकर 3b ही रहेगा ये, बट मैंने इसलिए किया बिकॉज 10 रेज टू b की वैल्यू है मेरे पास. 10 रेज टू b इज नथिंग बट a, so now I can replace it by a, so it will make it a cube by 100. So I represented this in terms of a. It was so easy. You need to think differently. You know why I like logarithms? Because in this there is no particular method or formula. It is a mixture of everything, and mostly it is uh, it is basically the application of your skills. And स्किल को याद नहीं कर सकते, स्किल को सिर्फ सीख सकते हो. लॉगरिथम इज स्किल. ठीक है? इफ somebody tells you के राइट ऑन अ पेपर हाउ टू राइड अ बाइसिकल, and I will give that paper to some new child and he will just read it and start riding. Is it possible? तुम बाइसिकल चलाना कैसे चलाना है उसको पेपर में लिख के किसी को दे दो और वो पढ़ के बस सीख जाएगा, ऐसा हो सकता है? तो तुम्हें लॉगरिथम का कितना भी बड़ा चैप्टर दे दे, कितनी भी टेक्निक्स बता दे, जब तक तुम खुद नहीं करोगे उसको, वो स्किल डेवलप नहीं करोगे, तब तक सीखोगे नहीं. सो इफ इन द एंड यू एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हें सब सिखा दूँ, वो नहीं. मैं तुम्हें टेक्निक बता सकता हूँ, ट्राई तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और वो स्किल डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे. चेक द आंसर प्लीज. 8C3. Okay. Next question. Okay, given log of m to the base 3 is x and log of n to the base 3 is y, express in terms of m and n. ऐसे अलग 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 क्वेश्चन दे दिए, ये बेस्ड ऑन द सेम स्किल जो पहले क्वेश्चन में किया था वैसा ही है ये भी. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 in your book if you want to see. Is it there, this question? Okay, so they are saying log of m to the base 3 is x. So can I say that 3 raised to x is equal to m? है ना? And they are saying that log of n to the base 3 is equal to y. Can I say that 3 raised to y is equal to n? सही है? 3 raised to x is m, 3 raised to y is n. ये दो चीज मुझे मिल गई है. मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं तुम्हारे लिए, सारे मैं कर लूंगा तो तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. सो 3 रेज टू 2x माइनस 3 को हमें एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ m. इन टर्म्स ऑफ m हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. प्राजक्ता, हेल्प मी. Very good. So can I first write 3 raised to 2x upon 3 raised to 3? Yes. And then can I write it as 3 raised to x the whole raised to 2 the whole upon 27? Yes. So can you tell me what is 3 raised to x? 3 raised to x is m. So can I say the answer is m square by 27? Easy. Very easy. Same set of skills which we have used earlier. Did you write these two ना? ये दो लिखा था ना पहले? हाँ.
ओके, प्रूव दैट, जब प्रूव करना है हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्या बड़ी बात। चलो फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। देखो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, रिमेंबर दैट यू हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड से। फर्स्ट क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? log of a the whole square minus log of b the whole square। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें और इसको RHS से इक्वल बनाना है। डू यू रिमेंबर द आइडेंटिटी इन अलजेब्रा a square minus b square? What is a square minus b square? A square minus b square, a plus b into a minus b into a minus b। से बोलोगे ना अच्छा नहीं है, you cannot forget all this। So this will become log of a plus log of b, second bracket log of a minus log of b। What is log of a plus log of b? Log of ab, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है a और b का, वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है ना कन्वर्ट, टाइम्स log of a minus log of b, a by b। Is that the RHS? Yes, so यहाँ पे लिख दो RHS। ओके, मतलब तुम लॉगरिथम में अलजेब्रा यूज कर रहे हो, algebraic identities। It's valid, it is valid to use algebraic identities in logarithms। ओके, ये इक्वेशन है लॉगरिथमिक इक्वेशन, इसमें x ढूंढना है तुम्हें। log of 25 to the base x minus log of 5 to the base x is equal to 2 minus log of 1 by 125 to the base x। इसमें x ढूंढना है तुम्हें, तो इस इक्वेशन को पहले एज इट इज लिखना पड़ेगा। log of 25 to the base x minus log of 5 to the base x is equal to 2 minus क्या है, log of 1 upon 125 to the base x। सही है ना? This is question number 11 from exercise 8C। Is it there in your book? X ढूंढना है। See how I do it। Can I write this as log of 5 square to the base x minus log of 5 to the base x is equal to 2 minus log of 1 upon 5 cube to the base x, है ना? अच्छा, अब ये जो 5 का स्क्वायर है वो 2 आगे आ जाएगा, सो 2 log of 5 to the base x
minus log of 5 to the base x is equal to 2 minus log of 5 raised to minus 3 to the base x. Do you agree? अच्छा, अब ये देखो एलजेब्रा देखो कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है. 2 log of 5 to the base x minus log of 5 to the base x. कौन बताएगा ये कितना होता है? 2 log of 5 to the base x minus log of 5 to the base x. Algebra है ये. It is not logarithm. In disguise it is algebra. अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि what is 2y minus y, क्या होता है? सही है. तो 2 log 5 to the base x minus log of 5 to the base x कितना होता है? Exactly. 2 apple minus 1 apple, 1 apple. 2 orange minus 1 orange, 1 orange. 2y minus y, 1y. 2 log 5 to the base x minus log 5 to the base x, log 5 to the base x. So ये हो जाएगा log of 5 to the base x is equal to 2 माइनस, ये माइनस जो 3 है पावर वो आगे आ जाएगा, माइनस 3 टाइम्स log of 5 to the base x. सही है. So log of 5 to the base x is equal to, अच्छा ये -3 आगे मल्टीप्लाई हो गया, -3 की माइनस साइन बाहर अगर ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई गेट 3 टाइम्स log of 5 to the base x. And just take this last step. Okay, so this will become log of 5 to the base x minus 3 times log of 5 to the base x is equal to 2. What is log of 5 to the base x minus 3 log of 5 to the base x? minus 2 log of 5 to the base x. सही है ना, -2, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो बड़े नंबर की साइन आएगी, इज इक्वल टू 2 आएगा यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, नाउ टू सॉल्व दिस, कैन आई शिफ्ट दिस -2 इन द डिनोमिनेटर ओवर हियर? मतलब what I mean is log of 5 to the base x is equal to 2 upon -2. Can I do that? So ये कट जाएगा ना, ये 2 और -2 और बचेगा -1. आंसर आ जाएगा, डोंट वरी. तुम्हें x ढूंढना है, रिमेंबर, यू माइट गेट लॉस्ट कि करना क्या था. होता है ऐसा. हो गया, देखो log of 5 to the base x is equal to -1. So इसका मतलब क्या है पता है? x raised to -1 is equal to 5. मतलब 1 upon x is equal to 5. मतलब x is equal to 1 by 5. This is x. किधर किधर? You this first step. How can you add, बाबा? ये क्या बोल रही है यार तू? ये पूरा एक साथ है और ये अकेला 2 है, ऐसा कैसे ऐड कर सकते? बॉड मास भी तो कुछ होता है ना, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 3 into log of 5 to the base x, उसके साथ वो पूरे के साथ 2 ऐड हो रहा है. यू कैनॉट ऐड. लॉग वाली सिमिलर टर्म्स को साथ में लेना पड़ेगा, इसलिए दोनों टर्म्स को साथ में लिया मैंने. ये लाइक टर्म्स हो गई, और लाइक टर्म्स को तुम ऑपरेट कर सकते हो, कर दिया, फिर 2 को उधर सेंड कर दिया, तो लॉग के टर्म्स में आया आंसर. यू कैनॉट ऐड नॉट विच यू आर सेइंग 2 + 3.
डिड यू अंडरस्टैंड लॉगरिथमिक इक्वेशन? सॉल्व करोगे तभी एक्सपीरियंस तुम्हारा बढ़ेगा, विदाउट सॉल्विंग तो मीन्स तुम तो सिर्फ देख रहे हो कि साइकिल कैसे चलाता है कोई आदमी, अभी साइकिल पे बैठे भी नहीं, ऐसी बात है। Can you show the first steps? Yeah, I will show. Have you written this? Yes. Yeah, these are the first steps. Check. Done? Yes. Okay, let's go ahead. Okay, now there are some few more properties, or you can say relationships. The first property, please note it down. If a and b are two positive numbers, then log of a to the base b is 1 upon log of b to the base a, and log of b to the base a is 1 upon log of a to the base b. मतलब अगर तुम जिस नंबर जिसका तुम लॉग ले रहे हो और बेस उसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हो तो वो नंबर अपना रेसिप्रोकल बन जाता है, बट ये नंबर लॉग में होना चाहिए. सो सपोज मेरे पास है log ऑफ 2 to the base 3. अगर 2 और 3 को इंटरचेंज करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा पता है? 1 अपॉन log ऑफ 3 to the base 2. मतलब 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ, बेस को वो नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं उससे चेंज कर सकता हूँ, तो ये होगा. इससे तो ये भी हो सकता है ना कि log ऑफ 2 to the base 3 times log of 3 to the base 2 is always 1. सही है ना? सो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारी, बट ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, एग्जांपल पे लिख लो, काम आएगा. चलो लेट्स फिनिश दिस चैप्टर टुडे. It is a long chapter, but it's all similar questions. नेक्स्ट मैंने जो बोला था वही वाली प्रॉपर्टी, log ऑफ a to the base b टाइम्स log ऑफ b to the base a is always equal to 1. लिखा ना तुमने वो भी? उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, log ऑफ a to the base a is 1, राइट? अगर दोनों साइड में x मल्टीप्लाई करता हूं तो x log ऑफ a to the base a is equal to x हो जाएगा. मतलब log ऑफ a raised to x to the base a will be equal to x. log ऑफ a raised to x, बेस क्या है? बेस भी a है, आंसर x ही आएगा. इसका एक एग्जांपल ले लो, log ऑफ 2 raised to 3 to the base 10
बेस भी 2 होना चाहिए ना। log of 2 raised to 3 to the base 2, आंसर क्या आएगा 3। अगर नंबर जिसका लॉग ले रहे हो और बेस दोनों सेम है तो नंबर का जो भी पावर है वही आंसर होगा। अच्छा, फोर्थ वाला देखो, log of a to the base b can be written as log of a to the base x upon log of b to the base x। मतलब अगर तुम्हें ऐसा दिया है कि log of 2 to the base 3, ठीक है, you can write it as log of 2 to the base 10 upon log of 3 to the base 10। दोनों का बेस क्या कर दिया मैंने, कॉमन लॉगरिथम वाला 10, और 2 को ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, 3 को डिनोमिनेटर में लिखा, तो इससे सॉल्व इजीली हो जाएगा। सी ये सॉल्व करना डिफिकल्ट है बिकॉज दिस इज नॉट कॉमन लॉगरिथम। टू सॉल्व दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिस इज नॉट कॉमन लॉगरिथम, बट टू सॉल्व दिस इज वेरी इजी बिकॉज दीज आर कॉमन लॉग्स, सो वी कैन सॉल्व देम। ये भी प्रॉपर्टी कहीं कहीं पे यूज होती है। या ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट ऑल ऑफ देम एज आई डिस्कस। इससे पहले वाले लिखे थे ना, ये लिख लो दोनों। So this is the property, this is the example, this is the property, this is the example। Yes, Sir, the video which you shared of the part 4, actually when you solve the 9th question, there were more, there were 2 extra question also, sir, which you solved. okay, no, you can ignore them। Okay, sir. Again, the idea is not to stick to one type of question or anything, it is to develop the skill। So if you can use all these properties and laws properly, then you can solve any of the questions। This is the last exercise, right? लिख लिया है? Okay, let's do a few questions। If 3 by 2 log a plus 2 by 3 log b minus 1 is equal to 0, then find the value of a raised to 9 into b raised to 4। Now here you are going to use the properties which we have just seen। ठीक है, कैसे यूज करना है ये देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ करके। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन दिया है ना क्वेश्चन में, 3 by 2 log a प्लस 2 by 3 log b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसी को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है सिंप्लीफाई, देखो 3 by 2 log a प्लस 2 by 3 log b इज इक्वल टू 1। क्या मैं लिख सकता हूं इसको इज इक्वल टू 1? क्योंकि माइनस 1 को वो साइड लेके जाऊंगा तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, सो कैन आई राइट इट एज log ऑफ a रेज टू 3 by 2 प्लस log ऑफ b रेज टू 2 by 3 is equal to log of 10 to the base 10। actually सबका बेस ही 10। I don't know if you have realized that, but I'm making it clear so that you don't have any confusion। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इसको मैं लिखूंगा ऐसे, log of
a raised to 3/2 times b raised to 2/3 to the base 10, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा log of 10 to the base 10. Can you tell me why these two got multiplied? Addition got converted into multiplication, ये as it is था. अच्छा, तो क्या अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आई डोंट नो हु विल आंसर दिस. कैन आई कट लॉग फ्रॉम बोथ द साइड्स? आई हैव टॉट यू दिस प्रॉपर्टी अर्लियर कि लॉग कट कर सकते हैं दोनों साइड से. तो लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 10 है तो लॉग हटाओ. तो व्हाट यू विल गेट, a raised to 3/2 times b raised to 2/3 is equal to 10, है कि नहीं? अब क्या करेंगे यार, अब आगे ये थोड़ा सा अभी अब हो गया है, बस क्वेश्चन का आंसर निकलने ही वाला है, लेकिन कैसे? Okay, a raised to 3/2 times b raised to 2/3 is equal to 10. मैं क्या करूंगा बताएं यहाँ पे? ओके, लेट मी ट्राई. 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6. तो मैं ये 2 को 6 बनाने की कोशिश करूंगा और ये जो 3 है उसको मैं 6 बनाने की कोशिश करूंगा. दोनों डिनोमिनेटर को मैं 6 बनाने की कोशिश करूंगा और ये बनाने के लिए मैं फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा 3/3. सो दिस विल बिकम 9/6. दिस विल बिकम 4/6. सेकेंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया 2/2. ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 10. अब ध्यान से देखना, a रेज टू 9 द होल रेज टू 1/6 टाइम्स b रेज टू 4 द होल रेज टू 1/6 आ गया आंसर, इज इक्वल टू 10. डू यू गेट दिस? क्या मैंने 9/6 था ना, तो उसको मैंने 9 इंटू 1/6 लिखा है. 9 को अंदर लिख दिया है और द होल रेज टू 1/6. अगर मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 1/6 तो 9/6 ही मिलेगा वापस. 4 इंटू 1/6 लिखा है तो 4 इंटू 1/6 4/6 ही मिलेगा. ठीक है. अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, a रेज टू 9 टाइम्स b रेज टू 4 द होल रेज टू 1/6 इज इक्वल टू 10. क्या किया मैंने, दोनों को साथ में लेके 1/6 को कॉमन लिख दिया, कॉमन पावर, अंदर बेसिस मल्टीप्लाई हो गए. नाउ द आंसर, सी हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? a9 b4. यहां पे क्या है? a9 b4 भी मिल गया, बस उसकी वैल्यू निकालनी है. a रेज टू 9 b रेज टू 4 चाहिए ना मुझे, बस मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालूंगा देखो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यहां से मैं यहां पे कैसे जा रहा हूं, ध्यान से देखना. a रेज टू 9 b रेज टू 4 इज इक्वल टू 10 रेज टू 6. खत्म. ये जो 1/6 है ना पावर, ये 6th रूट है, 6th रूट. और ये 6th रूट जब शिफ्ट करता है अपनी प्लेस फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड पावर में, तो वो
सिक्स रूट से सिक्स पावर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 1/6 6 बन जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है. सो डायरेक्टली वैल्यू आई 10⁻⁶. चेक करो आंसर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8D. Sir, it's correct. Did you understand this? This was, I think, a very, very nice question. Excellent question it was. Already in your in the video I have solved all the solved examples, right? In the live lecture I am solving the questions from exercises, so that you have variety of examples to look at and understand. पहले मैं ऐसा नहीं करता था, पहले मैं सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल बताता था बच्चों को और पूरी एक्सरसाइज होमवर्क देता था. अब तुम्हारे लिए इतना एडवांटेज हो गया है कि सॉल्व एग्जाम्पल भी है अपने पास रिसोर्स में, लाइव लेक्चर में वी हैव selected questions from the exercises, which is also recorded and available to you, and only the remaining ones you have to solve as homework. ठीक है, क्लियर है ये सबको? We'll finish this today. This is going to be done. Okay. Yeah, periodic. Next week will be log. स्कूल में केमिस्ट्री में कुछ नया स्टार्ट किया, फिजिक्स में कुछ नया स्टार्ट किया. अच्छा, so I'm going to start with, after this I'm going to start with simultaneous linear equation in maths, जो महंत को आ रहा है ना रिवीजन टेस्ट में. सॉरी, हाँ, लेकिन तुमने मुझे कुछ 1-2 वीक पहले बताया था कि they have started with simultaneous linear equations, so that might come for revision. तो मैं वो करवा दूंगा, आया तो अच्छी बात है, मतलब वैसे भी वो सिलेबस में है तो कर ही लेना है. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, या 2. But don't worry, the second part is much more easy. Second term syllabus, first term बहुत heavy था, second term बहुत easy. इतना प्रेशर नहीं है तुम लोग पे, ट्रस्ट मी. फर्स्ट मेरे को भी प्रेशर था, मतलब मैं भी डरा हुआ. But that's not a good division of syllabus what they are doing. Not good. हाँ, कंटेंट इजी है. फर्स्ट टर्म में तुम चैप्टर ही देखो कितना, मतलब समझाने में ही टाइम चला जाता है. इसमें तो ऐसा नहीं है, मतलब यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली. सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव डिवाइडेड लाइक दैट. हु इज बिहाइंड ऑल दिस मास्टरमाइंड? ढूंढना पड़ेगा उसको, पूछेंगे उसको क्यों भाई ऐसा क्यों किया आपने. ओके, x log 0, x is equal to log 0.6, y is equal to log 1.5 and z is equal to log 3 minus 2 log 2. Find the value of x plus y minus z. बहुत इजी है. तुम्हें किसकी वैल्यू ढूंढनी है? x प्लस y माइनस z. देखो x की जगह मैं लिखूंगा log ऑफ 0.6, ठीक है, प्लस y की जगह मैं लिखूंगा log ऑफ 1.25, माइनस z की जगह मैं लिखूंगा log 3 माइनस 2 log 2. सही है ना? log 3, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिखता हूं मैं क्योंकि अंदर माइनस है ना. log 3 माइनस 2 log 2, अंदर माइनस तो है ही, बाहर भी माइनस की साइन है. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स को ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए, ताकि अंदर साइन चेंज होगी जब सॉल्व करोगे. बस इसको सॉल्व कर लेना है, ये तो इजी है. टेल मी धानी. हाँ बताओ क्या.
अच्छा अच्छा, पहले सब खोल देता हूँ ना, फिर इजी हो जाएगा। एक मिनट, करना क्या है? अच्छा ठीक है, हो जाएगा, तू सही बोल रहा है। मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन यू आर राइट। 0.6 प्लस लॉग ऑफ 1.25 माइनस, पहले सब खोल देता हूँ, ठीक है। लॉग ऑफ 3 प्लस 2 log 2। सो कैन आई राइट इट एज, अच्छा ये सारे प्लस वाले एक साथ, ठीक है, बट फिर भी मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, log ऑफ 0.6 प्लस log ऑफ 1.25 plus log of 2 square. Did you understand why did I write log of 2 square? Why? Minus log of 3, सही है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log of 0.6 times 1.25 times 2 square divided by 3, सही है। पूरा एक साथ ही मैंने कर दिया है, झंझट ही नहीं चाहिए अपने को आगे। 3 और 0.6 कटेगा, 0.2 मिलेगा, राइट। ये 2 का स्क्वायर है 4, 1.25 इंटू 4 कितना होता है? 5। 1.25 इंटू 4 5 होता है। 1.25 इंटू 2 2.5 इंटू 2 5। 5 इंटू 0.2 कितना होता है? 0.1। नहीं, 5 इंटू 0.2 इज 1। 5 इंटू 0.2 इज 1, so this is nothing but log of 1। log of 1 to the base 10 कितना होता है? 0.1। log of 10 to the base 10 1 होता है ना, log of 1 to the base 10 0.1 होता है। 0.1 सही है ना? चेक करो एक बार, 0.1 होता है, 0.5 होता है? क्या? नहीं यार, Yes, sir. The answer is 0. आंसर इज 0। हाउ कैन इट बी 0? लॉग ऑफ 1 आया, आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? ये 0.2, ये हो जाएगा 5। 5 इंटू 0.2, नहीं सही तो है। 1.25 इंटू 4 होता है 5। 5 इंटू 0.2 होता है 1। तो 1 नहीं, 10 आना चाहिए उसके हिसाब से। Sir, because log of 1 to any base is 0. Oh, so it's my mistake. I'm sorry. I'm sorry. Log of 1 to any base is 0. सब कुछ करेक्ट है। log of 1 is 0, हमने पहले यूज भी किया है, क्या कर रहा हूँ। log of 1 is 0। log of 10 to the base 10 is 1। log of 1 to the base 10 is 0। So what is log of 10 to the base 1? 10 to the base 10 is 1। log of 10 to the base 10 is 1। log of 100 to the base 10 is 2। log of 1000 to the base 10 is 3। Silly mistake, but we got the answer correct. Question number 5. Do you have this question in your book? If log of a minus b is equal to 1 by 2 times log of a plus log of b, show that a square plus b square is equal to 6ab. हो जाएगा, इजी है। देखो, log of a minus b by 2 is equal to half
times log of A plus log of B. सही है? Can I write this as log of A minus B minus log of 2? नहीं यार, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? जरूरत नहीं है, ये सही है. आई एम सॉरी इफ यू हैव रिटन दिस, सॉरी. log of a माइनस बी बाई 2 ही रहने दो इसको. ये जो हाफ है ना, अच्छा इसको भी रुको, इसको तुम लिख सकते हो log of ab, है ना? अच्छा ये ab का स्क्वायर पावर में चला जाएगा 1/2, मतलब ये बन जाएगा log of a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू log of ab रेज टू 1/2. क्यों? ये आगे हाफ था ना, वो ab का पावर बन जाएगा. यू एग्री और नॉट? क्यों कंफ्यूज लग रही? हो गया, मतलब टाइम हो गया है. हाँ, कैपेसिटी खत्म है. अगर आगे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो ए बी का पावर बन जाता है. हाँ, आई कैन राइट इट, बट बिफोर दैट कैन आई कट लॉग फ्रॉम बोथ द साइड? है ना? अब तो वो पॉइंट पे आ गए कि लॉग कट कर दे, तो क्या मिलेगा? a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए बी का रूट, है ना? ए बी रेज टू 1/2 इज ए बी का रूट. अभी स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए बी. 4 को वो साइड ले लेते हैं, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. सो ए स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्या आंसर है उनका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 6ab. यस, वी गॉट इट. a square plus b square is equal to 6ab. Yeah. Wait. Easy it was. ठीक है, कितने क्वेश्चन बचे हैं? ऐसे तो बहुत बचे हैं. ठीक है, आई विल कंसिडर दिस टू बी कंप्लीट. Now try as much as you can from the remaining. Up to everything. Everything is done. Nothing is remaining. Full chapter is over. You have to try all the questions which are remaining. As much as जब बोला तो उसका मतलब है तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से. If you have capacity of completing everything, do that. But don't do 2 questions and say मेरे capacity उतना ही था. ना, नहीं है, of course. So I'm not saying that you should do this much or that much. You decide. You be the judge.